हेट्रोजाइगस था। हेट्रोजाइगस मतलब दोनों ही गैमेट्स डिफरेंट है, एक कैपिटल टी है तो एक छोटा है स्मॉल टी है, यानी उस केस में जो डोमिनेंट है वो डोमिनेट करेगा ओवर द रिसेसिव, इसलिए हमें वहाँ पे डोमिनेंट प्लांट मिला था, दैट इज टॉल प्लांट मिला था। बट अगर हम देखें स्मॉल टी की, जहाँ पे दोनों स्मॉल टी है मतलब वो होमोजाइगस है, होमोजाइगस मतलब दोनों सेम है, तो उस केस में हमें मिला था शॉर्ट। और जब हम देखें कैपिटल टी की, वो भी होमोजाइगस है तो वहाँ पे टॉल था। बट व्हेन इट इज हेट्रोजाइगस जहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, in that case always remember that the one which is dominant will dominate over the recessive character. सेम ऐसे कोई भी क्रॉस ले सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। सो इट वाज अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ से मिनट में क्वेश्चन आएंगे और पुनेट स्क्वायर क्या है वो भी आएगा। कौन था साइंटिस्ट जिसने पुनेट स्क्वायर बनाया? इट वॉज Ignatius Punnett is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offspring in a genetic cross. Law of segregation. This law states that allelic pairs separate or segregate during gamete formation and randomly unite at the time of fertilization. That means जब gamete formation होता है तब ये जो allelic pairs है वो separate होते हैं, segregate होते हैं। जैसे यहाँ पे जब gamete formation हुआ था तो यहाँ का एक gamete यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, that means they segregated. यहाँ पे gamete segregate हुए gamete formation के टाइम पे, and they united when they came they united at the time of fertilization. तो जब segregation होता है, gamete formation होता है, तब segregation होगा, and when there is a fertilization they unite. So homologous parents produce similar gametes and heterozygous parents produce two kinds of gametes each having one allele in equal proportion. So वही है कि अगर homozygous parent है तो similar gametes होंगे, and if it is heterozygous then we get different kinds of this gametes. In law of segregation, if you see, then alleles do not show blending. That means they do not mix with each other. They maintain their gametes, and that both characters are recovered as such in the F2 generation. Pairs of alleles segregate and separate at the time of gamete formation, and they randomly unite at the time of fertilization. Dominance. What is incomplete dominance? The word incomplete means जो चीज़ complete नहीं हुई है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि वी हैव फ्लावर कलर एज आर कैरेक्टर। इन दिस केस वी टुक अ फ्लावर विच इज रेड एंड वाइट। रेड इज ऑलवेज डोमिनेंट एंड वाइट इज रेसेसिव ओवर दिस केस। नाउ हमने देखा कि जो हमेशा डोमिनेंस होता है तो उसमें क्या होगा कि जो F1 जनरेशन है उसमें यहाँ का गैमेट आएगा, यहाँ पे आएगा, एंड देन दे फर्टिलाइज टू फॉर्म अ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। दैट मीन्स आर विल डोमिनेट ओवर स्मॉल आर। दैट मीन्स सारे जो फ्लावर है वो क्या होने चाहिए थे, डोमिनेंस के हिसाब से रेड होने चाहिए थे, बट इन दिस केस वो रेड होने के बजाय पिंक हुआ। दैट मीन्स ना ही उसने रेड कलर का डोमिनेंस शो किया ना ही वाइट, इट वॉज इन बिटवीन। दैट मीन्स के इन सच केस the plant do not inherit from their parents. It is intermediate, it shows intermediate character between two parental characters. So अब यहाँ पे जब इसका हमने F2 जनरेशन निकाला तो हमने देखा कि ये अगेन पुनेट स्क्वायर है, तो उसका जब हमने देखा तो फिनोटिपिक रेशियो तो 3:1 आनी चाहिए थी, जो कि अब इस केस में आएगी 1:2:1, एंड जीनोटिपिक रेशियो होगी 1:2:1. दैट मीन्स बोथ फिनोटिपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो विल बी सेम. अब ये जो क्रॉस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो प्लांट शो करते हैं, जैसे एंटीरिनियम एंड मिराबिलिस जलेपा एंड स्नैपड्रैगन और 4 o'clock प्लांट, दे ऑल शो दिस incomplete dominance. So incomplete dominance is the type of dominance in inheritance in which the offsprings produce intermediate character which is between the two parental characters. Here F1 had a phenotype that did not resemble either of two parents and was in between in the two. The inheritance of a flower color in the dog flower or the snapdragon or antirum is a good example to understand incomplete dominance. So ये एक again ये इट वॉज अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. वैसे ही हमारे पास और एक डोमिनेंस होगा जिसे बोलेंगे कोडोमिनेंस. नाउ व्हाट इज इट? कोडोमिनेंस इज व्हेन द इनहेरिटेंस द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट बोथ ऑफ देयर पैरेंटल कैरेक्टर्स. जैसे गुड एग्जाम्पल ऑफ इट इज ABO ग्रुपिंग. द ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय द जीन I, कैपिटल I. सो इवन नीट में इसके क्वेश्चंस में कैपिटल I की जगह पे स्मॉल I भी दिया था, सो इट वॉज बेसिकली इनकरेक्ट line. तो वैसे क्वेश्चंस भी फॉर्म हो सकते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी स्टिक टू द NCERT एंड ईच एंड एवरी लाइन शुड बी थॉरली रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन. जितना हो सके उतना रिवाइज करना, इट विल बी हेल्पफुल. सो ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन कैपिटल I.
तो जीन आई जो होते हैं उसके टोटल 3 ट्रेट्स होते हैं, 3 अलील्स होते हैं. एक होता है कैपिटल आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई. इन दिस केस आई ए एंड आई बी बोथ आर डोमिनेंट वेयर स्मॉल आई इज रेसेसिव. अब जब भी कैपिटल आई ए एंड आई बी होता है एंड स्मॉल आई होता है, उसमें से हमेशा ये दोनों डोमिनेट कर जाएंगे एंड दिस विल बी अ रेसेसिव वन. अब ह्यूमंस जो है दे आर डिप्लॉयड, यानी सिर्फ 3 में से कोई भी 2 ही अलील्स को वो ले सकते हैं, 3 तो नहीं ले सकते. दैट मीन्स इन तीनों में से कोई भी 2 के पैर बनेंगे. इधर आई आई के साथ आ जाएगा तो ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए होगा. इफ आई बी कम्स विद आई देन ब्लड ग्रुप विल बी बी. इफ आई आई कम्स 2 टाइम्स दैट मीन्स ब्लड ग्रुप विल बी ओ. एंड अगर आई आई बी के साथ आ गया तो ब्लड ग्रुप विल बी ए बी. एंड इफ आई बी आई ए हुआ तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा. सो यू कैन सी इसके हिसाब से हमारे पास टोटल कितने ब्लड ग्रुप्स बनेंगे. एक होगा ए बी आई बी एंड ओ, 4 ब्लड ग्रुप्स बनेंगे. तो 4 ब्लड ग्रुप shows us the physical character, right? So it will be phenotype. So total of 4 phenotypic expressions will get from this cross. And if we talk about genotypic, तो genotypic में total हमारे पास 6 बनेंगे. So total 6 genotypic characters we have and total 4 phenotypic expressions will get. So you can see this table जहाँ पे दिया है कि आई के साथ हुआ तो ए ब्लड ग्रुप, ए बी, देन ए बी, बी बी ओ. टोटल 6 जीनोटाइप, 4 फिनोटाइप. तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट चार्ट है. याद रखने की वाली बात है कि 4 फिनोटाइप है एंड 6 जीनोटाइप है. फ्रॉम विच वी सी स्मॉल आई जो होगा दैट इज रेसेसिव एंड दीज बोथ आई एंड आई बी आर डोमिनेंट. एंड द एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स इज कंट्रोल्ड बाय कैपिटल आई जीन. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. ओके, तो इट वॉज अबाउट को डोमिनेंस. यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रोजनी है वो दोनों को इनहेरिट कर रहा है. इवन आई को इवन आई बी को, दोनों एक दूसरे को डोमिनेट है, दोनों डोमिनेट है. यहाँ पे कोई रेसेसिव ही नहीं है. बोथ पेरेंट्स आर बीइंग रिसेंबल्ड इन दी प्रोजनी. देयर इज नो वन विच इज रेसेसिव. बट इन दिस केस ऑफ द आई बी एंड आई, इफ यू सी अगेन दोनों ही है, भले आई रेसेसिव होगा. सो अगेन इट वॉज अबाउट को डोमिनेंस. Now multiple alleles. What is multiple alleles? Multiple alleles means when the characters are controlled by one character is controlled by 2 or more alleles. मतलब more than 2 or 3 alleles govern the same characters. Multiple alleles. Multiple मतलब बहुत ज़्यादा alleles. तो बहुत सारे alleles होंगे जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे. दैट इज मल्टीपल allele. अगर हम देखें एबीओ ब्लड ग्रुप का तो वहाँ पे भी कैपिटल आई जो जीन था, जीन आई जो था, इट वॉज कंट्रोलिंग बेसिकली IA, IB, I and all. These were their alleles and they were controlling ABO blood group. That was the same character. That is blood group. तो वो एग्जाम्पल है मल्टीपल allele का. Similarly, if you see the स्किन कलर, स्किन कलर में डार्क कलर होता है, एक लाइट कलर होगा एंड इंटरमीडिएट भी होता है. तो बेसिकली सो मैनी लाइक टोटल वी हैव सो मैनी alleles दैट कंट्रोल्स द सिमिलर कैरेक्टर दैट इज स्किन कलर. वैसे ही हाइट इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल allele वेयर इधर टॉल है, शॉर्ट है, इंटरमीडिएट है, कोई उससे भी ज़्यादा है. तो बहुत ज़्यादा allele है और सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, वो है हाइट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. So that is example of multiple alleles where 2 or more alleles come together and they govern the same character. What is pleiotropy? Now pleiotropy is again इसका opposite where यहाँ पे क्या था कि बहुत ज़्यादा allele एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे. अब इसका थोड़ा उल्टा करना है. एक कैरेक्टर जो है वो 2 से ज़्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है. मतलब ऐसा है कि कैरेक्टर, ट्रेट, जीन और allele, इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले बहुत सारे अलील्स एंड एक जीन को कंट्रोल करने वाले बहुत सारे ट्रेट्स. तो यहाँ पे जस्ट उसका मैच कर दिया है जीन को ट्रेट के साथ, कैरेक्टर को अलील के साथ. तो वैसे वो पीलियोट्रॉपी कहते हैं. तो पीलियोट्रॉपी इज द वन दैट कंट्रोल्स द 2 or more traits. One gene is controlled by 2 or more traits. Now इसके एग्जाम्पल्स क्या है कि राउंड एंड wrinkled seeds and starch grain size are the 2 examples. Let's see कैसे. तो हमारे पास एग्जाम्पल है वो राउंड सीड का. तो जो सीड शेप है वो एक तो हो सकती है राउंड एंड एक हो सकती है व्रिंकल्ड, इन विच राउंड जो था वो डोमिनेंट था, व्रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव है. तो इसका जो F1 क्रॉस होगा वो यही होगा कि वो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर होगा. तो उसका जो प्रोजनी है वो राउंड होगा. एंड उसकी अगर ये देखें, कैपिटल बी स्टैंड फॉर लार्ज ग्रेन साइज एंड स्मॉल बी फॉर द स्मॉल वन. तो जब बी एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल बी जब आएंगे तब एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो कर रहे हैं वो. दैट मीन्स दे शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन दिस केस. और यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस दिख रहा है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है. सो इन दिस केस हमने देखा कि जो प्लियोट्रॉपी के जो एग्जाम्पल है उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखने मिलता है, यानी इंटरमीडिएट कैरेक्टर भी मिल रहा है. सो दैट कम्स अंडर प्लियोट्रॉपी. दिस वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है. They tell us that dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from these products as it does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene. It means that dominance जो है वो एक independent feature नहीं है, वो एक autonomous feature नहीं है.
वो डिपेंड करेगा जीन के प्रोडक्ट पे। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी था, तो हमें लगा कि वो क्या होगा, लार्ज ही होगा, बट था क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो वो डिपेंड करेगा जीन पे के प्रोडक्ट पे कि वो क्या हो सकता है, डोमिनेंस कैसा हो सकता है। इंटरमीडिएट हुआ तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम द प्रोडक्ट, कि कौन सा फिनोटाइप आ रहा है। जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट था तो वी गेस दैट इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड अगर ये इंटरमीडिएट नहीं होता तो हम कुछ और कह देते। सो और everything is like dominance is not a autonomous feature, it is not a independent feature, it depends upon the gene product and the information that it has for. So let's talk about total 2 characters into our consideration. यहाँ पे 2 contrasting characters लिए है, seed shape and seed color. seed shape में if we see dominant जो है वो है round and wrinkled जो recessive है, and seed color में yellow is dominant and green is recessive. So dihybrid cross में हम 2 characters को consider करते हैं, then we say it as dihybrid cross. Now अब इसकी हमें F1 जनरेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने डोमिनेंट वाले लिखे हैं एंड यहाँ पे रेसिसिव है। सो कैपिटल R इसमें से आएगा एंड कैपिटल Y, स्मॉल r एंड स्मॉल y। अब ये दोनों मिलके F1 जनरेशन फॉर्म करेंगे, दैट इज कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। सो यहाँ पे PC के यहाँ पे एक डोमिनेंट हमारा F1 प्लांट फॉर्म हुआ है। अब यही सारे कंबाइन होंगे टू फॉर्म F2, जहाँ पे हमें पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। Now from this we can form total 4 types of gametes. One is I can take capital R and capital Y, small r and small y, capital R and small y and small r and capital Y. तो अब ये 4 फॉर्म हो चुके हैं। अब इसे पुनेट स्क्वायर कैसे फॉर्म होगा। सो पुनेट स्क्वायर मैंने फॉर्म किया है। यहाँ पे मैंने 4 ही जो गैमेट्स फॉर्म हुए थे, कैपिटल R Y एंड ऑल, वो सारे लिख दिए। अब एक एक करके इनके साथ क्रॉस करना है। फर्स्ट मैंने कैपिटल R के साथ किया, देन Y एंड Y लिखा, देन स्मॉल r एंड कैपिटल R, तो कैपिटल R विल डोमिनेट, दैट्स व्हाई कैपिटल R, स्मॉल r एंड कैपिटल Y एंड स्मॉल y। वैसे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एंड देन इसको इसके साथ करूँगी, इसको इसके साथ, एंड देन ये पूरा ऐसे होगा, एंड देन पुनेट स्क्वायर विल बी फॉर्म। सो ये पुनेट स्क्वायर है डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए। अब लेट्स सी कि इसका जो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या आएगा। तो सीड शेप में जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 थी, फिनोटिपिक रेशियो वाज 3:1, and in this case if we see about dihybrid cross then we get phenotypic ratio as 9:3:1, from which the 9 stands for round and dominant one was yellow. So round and yellow plant, total 9 plants were there which were round and yellow, 3 plants for round and green, 3 for wrinkled and green, wrinkled and yellow, and 1 plant for wrinkled and green. So this was the phenotypic ratio which we get from this dihybrid cross, that was between seed shape and seed color. तो वी सी कि यहाँ पे भी हमें डायहाइब्रिड क्रॉस में अगेन डोमिनेंस दिखने मिल रहा है। और Mendel's law of independent assortment, it states that when more than one pair of characters are involved in a cross, the segregation of one pair of contrasting character is independent of the segregation of other pair of contrasting character. Also, the new recombinations of characters along with the parental type appears in the F2 generation. So ये डायहाइब्रिड